Hello students, so today we will discuss subject computer for the class 8th, and in last video class we discussed the chapter number 8. Just one second, it was chapter number 7. So in that chapter we discussed some basics about QBasic, कुछ फंडामेंटल बातें की हम लोगों ने QBasic के बारे में, and here we are to discuss some more about the QBasics. So the topic which we are going to start from, that is the QBasic editor. What basically is QBasic editor? A QBasic editor is basically an IDE, integrated development environment. Means it is a tool that is designed to help you to write the codes, to execute the code, to edit the code, to debug the codes. Means if there is any error, it will help you to debug the code. Okay. For example, one can open, save or print a program file using options from the menu bar. Cut, copy, paste operations can also be easily carried out in a simple way. So this is an IDE. This IDE is designed for ease of access. जो आपका IDE सॉफ्टवेयर है वो आपको प्रोग्राम लिखने में हेल्प करेगा. आप कोड लिखोगे, you can save for the future use, you can open it, you can remodify it, cut, copy, paste. If you wish to copy the portion of code from one file to another file, this IDE will help you to do that also. Okay. So how we can install it on our computer so that we can use it? So here are the instructions or the suggestions for the installation for Windows XP and or older. That is not possible nowadays because ना तो भी Windows XP हम use कर रहे हैं ना तो उससे older. Windows XP is out of support है. So that is not available, so need not discuss this. Yes, but here we have option to discuss that. 32-bit Windows Vista, Windows 7, Mac OS and Linux. So on these platform we have to use QBasics 1.1 and it will run in DOSBox. Okay. And then 64-bit version also available. Means it is available in 32-bit variant and 64-bit variant also. And the main thing that on 64-bit you will find it QB64, and in 32-bit we have to use DOSBox to run the QBasics program. Okay. So now some suggestions how we can download. So here are some download links given, and with the help of this download links we can download. So we can download from qb64.net, dosbox.com. Okay. And now the steps to write a program in QBasics. How we can write the programs. And before write any program, we just know about the basics features of the QBasic window, that QBasics IDE, how it will look like. So a figure is given here, and you know the title bar, the topmost level is known as the title bar, and below that there is one menu bar. Here is file, edit, view, search, run. So all these are the menus, and where it is available, that is known as the menu bar. That is program, and next is program edit window. This blue screen, जो blue screen आप देख रहे हैं, this is your program of your edit window, and here you can write the program, you can edit also. And on the bottom side see the current column, current line. आप जिस line पे work कर रहे हैं, on which column, on which line you are working, it is being displayed here. That is also known as the status bar. So on the status bar all these informations are available, and caps lock is on or not, num lock is on or not, that is also available here. You can check from here also. And next what is, yes, the QBasic statements. So that was the basic introduction of the QBasic interface. Now here we will discuss what is QBasic statements. So the statement is an instruction written by using commands of QBasics. Means with the help of QBasic commands, whatever you are going to write, that is known as the statement. एक इंस्ट्रक्शन जो आप देना चाहते हैं, मीन्स आप you know that computer cannot work without instructions. The same way, this is the programming language, and here we are going to write the programs.
मतलब ये प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो इंस्ट्रक्शन हम लिखना चाहते हैं, रिटन बाय यूजिंग commands of the QBasics, that is known as the statements, and the statements are first stored in the memory and executed only when the run command is given। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या है, आपके मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। QBasics उसको आपके कंप्यूटर मेमोरी में लोड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जब आप रन कमांड देते हैं, whenever you provide the run command, then it is being executed। See here what is happening। सारी कमांड्स लिखने के बाद जब आप रन करेंगे तो ये कमांड्स रन करेंगे। अब कुछ स्टेटमेंट्स जो आपके QBasics के हैं, लेट अस डिस्कस सम स्टेटमेंट्स ऑफ द QBasics। द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज REM। इट इज फॉर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? दिस स्टेटमेंट्स यूज टू गिव रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम में कुछ रिमार्क्स लिखने हैं या फिर आप कमेंट कह सकते हैं उन्हें, तो वी हैव द स्टेटमेंट REM। एंड हाउ इट इज द, व्हाट इज द सिंटेक्स? First of all, you have to write REM, and after giving one space, whatever you wanted to give as the syntax, whatever you wanted to give as the statement, you can write here। मतलब जो भी आपको कमेंट देना है आप REM लिखिए और REM के बाद आप अपना कमेंट लिखिए। CLS clears the output screen, जो आउटपुट स्क्रीन है आपकी उसको क्लियर करता है। सिंटेक्स है, सिर्फ आपको CLS लिखना है। LET मीन्स जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, let x equals to 100, let y equals to this, let particular thing is x। So it is, let is the statement it is used to assume। This is the assignment statement to assign the value to a variable। let variable equals to constant or variable or expression। okay, आप वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू देना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं या फिर कोई एक्सप्रेशन स्टोर करना चाहते हैं, द सेम ऑल थिंग यू कैन डू। तो हियर लेट इज यूज्ड फॉर द असाइनमेंट। देन एंड इज द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, देन यू हैव टू प्रोवाइड दिस एंड स्टेटमेंट। देन प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, मींस ऑन द रिजल्ट स्क्रीन। एंड सिंटेक्स वही है, प्रिंट लिखने के बाद आपको व्हाटएवर द मैसेज आए, वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन जो भी आपको प्रिंट कराना है, यू हैव टू राइट देयर। ओके, द एग्जांपल्स लिस्टेड विल एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रिंट विथ सेमीकोलन, तो यहाँ पे क्या होगा, आप मीन्स हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, जस्ट यू हैव टू राइट प्रिंट एंड देन जितने भी डेटास आपको प्रिंट करने हैं, व्हाटएवर द वेरिएबल्स स्टेटमेंट्स, जस्ट गिव देम आफ्टर सेमीकोलन एंड इट विल प्रिंट वैल्यूज कंटिन्यूसली। ये कि आपका कंटिन्यूसली वैल्यूज को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हियर इज द एग्जांपल। सी इन दिस फिगर द एग्जांपल इज गिवन हियर। print wonderful semicolon word semicolon of semicolon computers। so here wonderful words of computers, there is no space। तो जब आप सेमीकोलन यूज करते हैं तो ये आपका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, जो इंटरप्रेटर है, इन वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं देता और वो कंटिन्यूसली प्रिंट किया जाता है। एंड इफ यू यूज द कॉमा देन इट विल प्रिंट वैल्यूज जोन वाइज। जब आप कॉमा दे के प्रिंट करते हैं तो इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट करके प्रिंट किया जाएगा। जैसे सेम स्टेटमेंट इज यूज्ड हियर, वंडरफुल कॉमा वर्ड कॉमा ऑफ कॉमा कंप्यूटर्स। सो इट इज प्रिंटेड लाइक this is like the column headers, just like it is printed। okay, and print with tab n। so how we can use the tab n? tab n means where n and m are the different column numbers। so means here the example is given, print tab n। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ, प्रिंट टैब एन डेटा 1 देन टैब एम डेटा 2। तो जो एन एन एम है दैट इज द नंबर, कॉलम नंबर। हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन को कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे लॉजिकली और हम उस पर्टिकुलर कॉलम में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए लास्ट में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रिंट टैब 5 सेमीकोलन माई देन सेमीकोलन टैब 10 कोलन स्कूल। इट मीन्स जो कॉलम नंबर 5 है वहाँ पे माई प्रिंट किया जाएगा एंड कॉलम नंबर 10 में स्कूल प्रिंट किया जाएगा। So here we can define the, means logically we can divide the screen into the columns and then we can print। so यहाँ पे हमने 3 तरीके देखे प्रिंट स्टेटमेंट करने का। एक तो हम प्रिंट सेमीकोलन के साथ जब प्रिंट करते हैं तो उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। दूसरा, जब आप कॉमा दे के देते हैं तो स्क्रीन में जितने भी अपने चीज़ों को प्रिंट करने के लिए वो पूरे स्क्रीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया।
ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से स्पेस डिफाइन करके। और जब हम टैब एन यूज़ करते हैं, इट मीन्स वी आर हियर टू डिफाइन द कॉलम नंबर्स कि ये पर्टिकुलरली इस कॉलम में प्रिंट होना चाहिए। And then the input statements, how we can take input from the user. So this statement is used to accept a data value from the user and store it in a variable. भाई जो भी आप यूज़र से इनपुट लेंगे उसको आप वेरिएबल में स्टोर करेंगे to access, to do operations on that. So this is the input statement, and how we can use it, that input, then a string or number variable. Here input age, it means the number given by the user will be stored inside the age variable. Then name, it means it will be the string variable, age is the integer and name is the string. Dollar symbol is given after name. हमने लास्ट वीडियो क्लास में डिस्कस किया था इस बात को कि जब भी आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना होता है तो आपको वेरिएबल के नाम के जस्ट बाद आपको डॉलर सिंबल ऐड करना होता है। ओके, हम आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक साथ ले सकते हैं, इनपुट वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। सो इनपुट ए बी सी, तो ये आपका जो आईडीई है ये 1 by 1 इनपुट्स को रिसीव करेगा और इन वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। आप चाहते हैं कि कुछ मैसेज के साथ प्रिंट करना, सो यू कैन यूज दैट इनपुट, देन इनटू दिस डबल कोटेशंस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप अपना मैसेज प्रिंट कीजिए, सेमीकोलन देने के बाद नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट विल स्टोर द वैल्यू डायरेक्टली इनसाइड द, जस्ट लाइक हियर एग्जांपल इज गिवन इनपुट योर नेम। तो योर नेम आपका क्या है, डबल कोटेशन में है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है। While using input statement, the computer performs following tasks. जब आप input statement यूज करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, आपका stops further execution. आपका प्रोग्राम कुछ और नहीं कर रहा होता, वो वेट करता है किस बात का, कि यूजर उस पर इनपुट देगा। It prints a question mark on the screen. जब भी आपका कंप्यूटर इनपुट मोड में होगा, there will be an question mark on the screen. So it will help you to identify that the computer is waiting for the input. And it waits for the user to type in value and press enter. जब भी आप कोई वैल्यू प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, टाइप करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंटर की प्रेस करना होगा टू गेट आउट ऑफ द इनपुट मोड। एंड इट स्टोर्स द टाइप्ड वैल्यू इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल मेंशन्ड इन द इनपुट स्टेटमेंट। जैसे अगर आपने स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डेटा को स्टोर करने के लिए लिखा है, जैसे इनपुट ए बी सी आपने दिया, तो जो फर्स्ट वैल्यू आप देखें, एंटर की प्रेस करेंगे तो दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द फर्स्ट वेरिएबल, देन सेकंड वेरिएबल, देन थर्ड वेरिएबल। तो जिस भी सीक्वेंस में आपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया, इट विल स्टोर द वैल्यूज इनटू दैट सीक्वेंस आल्सो, दैट सीक्वेंस ओनली। नाउ द कंट्रोल फ्लो इन अ प्रोग्राम। सो द कंट्रोल फ्लो इन अ प्रोग्राम मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, हाउ दिस प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूट। आप इसको लीनियरली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर आप इसको दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो दिस इज डिफाइंड इन द कंट्रोल फ्लो इन अ प्रोग्राम। आप जैसे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डिसाइड हो जाता है कि प्रोग्राम लीनियरली वर्क करेगा या फिर नहीं। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा कि इनपुट अ नंबर या इनपुट एनी टू नंबर्स, देन आपने क्या किया, उसका सम करके रिजल्ट प्रिंट कर दिया। व्हाट इज दिस इज द लीनियर प्रोग्राम, जस्ट टेकिंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड गिविंग आउटपुट। जैसे यहाँ पे एक गेम लिखा हुआ है, गेम क्या लिखा है, आपने 2 टीम बनाइए और हर टीम के कैप्टन को कहिए कि जो आपके जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड, कोई भी एक कार्ड पिक करें रैंडमली। अगर वो कार्ड रेड कलर में है तो आपको क्या है 1 मार्क्स मिलेंगे, 4 टर्न दिए जाएंगे सबको। तो आफ्टर दिस 4 टर्न जिसके 4 पॉइंट्स हो जाते हैं वो विनर, जिसके नहीं होते हैं वो लूजर, या फिर जिसके भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दे आर विनर। 4 पॉइंट इज द मैक्सिमम। किसी के 1 आते हैं, किसी के 1 भी पॉइंट्स नहीं आते, तो 1 पॉइंट इज ऑलमोस्ट विनर। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कम्प्लीटली लीनियर। आपको देखना है, रेड है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। नाउ वी कैन मेक दिस गेम सम इंटरेस्टिंग। जैसे आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कोई एक स्पेशल, अगर ये पर्टिकुलर कार्ड अगर आप पिक करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या फिर आपके सारे पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, या फिर आपको सिर्फ ये कार्ड डायरेक्टली मिल जाता है। जैसे अगर आपको किंग का कार्ड मिल जाता है तो यू आर द विनर। उस 52 कार्ड में से आपको रैंडमली कोई भी एक कार्ड पिक करना, तो 52 कार्ड्स तो पूरे रेड कलर के नहीं है ना। सो हियर व्हाट आर यू डूइंग, हियर वी हैव टू थिंक ऑन मल्टीपल पॉइंट्स। सो दिस इज द वे वी कैन change the control of the program, control the flow in a program. And how it is done, just read in the next line, that flow of control in a program. Flow of control is the order in which a program performs the action. आप स्टेटमेंट किस ऑर्डर में लिखते हैं डजंट मैटर, वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल।
सो वी आर डिस्कसिंग दिस फ्लो ऑफ कंट्रोल. तो इसमें क्या है फ्लो ऑफ कंट्रोल में, एक एग्जांपल अगर आप ले लें, बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जहाँ पे आपको क्या है कि लीनियर एग्जीक्यूशंस नहीं होंगे. जैसे मान लीजिए कि अभी आपके स्कूल बंद हैं ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक. सो व्हाट यू हैव टू डू दैट इफ द गवर्नमेंट विल अलाउ, if the government will allow, means government will allow the schools to be open and parents also allow, then you will come to the school. तो यहाँ पे क्या है, you have to think for two situations. अब ठीक है दूसरे को bypass कर दीजिए. Just if government will allow, then you will come to the school. So here what you have to do, if government doesn't allow, then you will stay home and read online. तो हियर आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी आपका जो प्रोग्राम है, ये लीनियर एग्जीक्यूशन नहीं है. तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन क्या है, चेक फॉर द परमिशन. तो परमिशन मिली है कि नहीं. अगर परमिशन यस है देन गो टू द स्कूल, परमिशन नो है तो देन स्टे आउट होम एंड स्टडी देयर. तो दिस इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड वी कैन डिसाइड हाउ दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड. मीन्स एग्जैक्टली आप 100% डिसाइड नहीं कर सकते, बट यू कैन लॉजिकली डिसाइड कि इस लाइन के बाद ये लाइन ही एग्जीक्यूट की जाएगी. जैसे आप अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं. कंडीशन फॉल्स होगा, डिसीजन फॉल्स होगा तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं. बट क्या कंडीशन आएगा ये आप डिसाइड तो नहीं कर सकते. सो वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. एंड हाउ वी कैन डू दिस, जस्ट लाइक इफ देन सिलेक्शन, इफ देन एल्स. This is the branching. Go to unconditional jump. सपोज आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखा कि अगर ये होता है तो सीधा यहाँ जंप कर जाओ. जैसे आप लूडो गेम खेलते हैं, तो लूडो में अगर आप स्नैक लैडर वाला गेम खेल रहे हैं, जनरली आप लोग कई बार ऐसे खेलते हैं ना कि जैसे अगर आपको सीढ़ी मिली, लैडर मिला, तो लैडर राइटिंग का एक चांस लेते हैं आप. तो अगर आप इस प्रोग्राम को, सपोज आप ये प्रोग्राम राइट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रोल द डाइस. ओके, सेकंड क्या है, रीड द नंबर, जो भी नंबर आपके डाइस पे है, देन फॉलो दैट स्टेप्स. उतने स्टेप्स आप फॉरवर्ड मूव करते हैं. अगर वहाँ पे क्या है, लैडर है, देन मूव टू द टॉप, जो भी लैडर का टॉप पोजीशन है वहाँ पे आप जाते हैं. देन अगेन क्या करेंगे, देन अगेन जंप क्या करते हैं, गो टू द स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 क्या था, रोल द डाइस. अगेन आपने डाइस रोल किया, वट एवर द नंबर केम, जस्ट मूव फॉरवर्ड, फिर वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं. सो दिस इज द गो टू एग्जाम्पल. आप बीच प्रोग्राम से कहीं भी जंप कर जाते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर जाएं, ज़रूरी नहीं है आप नीचे जाएं, कहीं भी जा सकते हैं. मतलब इन साइड द प्रोग्राम आप कहीं भी जंप कर सकते हैं. दिस इज अनकंडीशनल जंप. ये कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है. देन इफ देन एल्स, व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्रांचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इफ एंड देन, मतलब ये स्टेटमेंट हुआ तो हम ये करेंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं. जैसे आपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, वो 2 टीम बनाइए और जो प्लेइंग कार्ड्स है वहाँ से आप एक एक कार्ड को निकालिए. अगर वहाँ पे रेड कलर आता है देन 1 पॉइंट, अदरवाइज कुछ नहीं. देन दिस वाज द सिंपल इफ एंड देन, इफ एंड देन. देन नेक्स्ट, इफ अनदर कार्ड कम्स, देन डिसाइड इफ देयर इज जोकर, देन व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज किंग व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज क्वीन व्हाट विल हैपन. सो दिस इज इफ देन एल्स. दिस इज द ब्रांचिंग. मीन्स आपको इफ के बाद भी यू हैव टू थिंक. Here is one example given here, if condition then statement 1 and if statement 2, explanation. If condition sorry, not explanation. Explanation क्या है, if condition 1, if condition is true, this statement 1 will be performed. यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि if दिया, हमने एक कंडीशन दिया, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया जाएगा. लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है देन व्हाट विल हैपन, स्टेटमेंट 2 को चेक किया जाएगा. सॉरी, स्टेटमेंट 2 तो चेक नहीं करना, यहाँ पे तो कंडीशन में है नहीं. यहाँ पे लिखा आपने इफ लिखा, कंडीशन दी, चेक किया और स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करके एंड कर दिया, एंड इफ हो गया. देन व्हाट विल हैपन, देन स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर इफ क्या होता है, ये कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो जाती है, जो भी कंडीशन आपने दिया वो ट्रू नहीं है, देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा सीधा आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट किया जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, इफ total is less than 99, then print work hard and print your total marks are whatever the total is. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके मार्क्स 99 से कम है तो ये लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी, वर्क हार्ड. अगर नहीं है तो सीधा सीधा आपका
रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, योर टोटल मार्क्स आर वट एवर द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन। और अगर मार्क्स 99 से कम है तो आपको ये भी मैसेज मिलेगा कि वर्क हार्ड एंड देन योर रिजल्ट विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, यू कैन डिसाइड। Here also we have another example. This is the branching. If then statement 1, else statement 2 and if statement 3. अब यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी, जो भी कंडीशन आपने चेक की है, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टेटमेंट 3 तो एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट किए जाएंगे, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 विल execute. See the example. If total is less than 99, then print fail, else print pass, and then print your total marks are. तो आपका रिजल्ट चेक किया जा रहा है, अगर आपके टोटल 99 से कम है तो एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा फेल एंड देन योर टोटल मार्क्स विल बी गिवन। अगर आप 99 से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपका एक रिजल्ट ऊपर लिख के आएगा पास एंड देन योर टोटल मार्क्स विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज if else and it is if then else and if. This is also the example of branching. See the statement if then statement 1, else if condition 2, then statement 2, then else statement 3. Now what is happening here, अगर कंडीशन 1 हमारी ट्रू होती है, जो भी कंडीशन हम देते हैं, तो कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन 2 भी हमारा ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, और अगर ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे आप एग्जांपल देखें, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 देन ग्रेड ए, एल्स इफ मार्क्स greater than or equals to 80 then grade B, else if marks greater than or equals to 70 then grade equals to C, else grade equals to D। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कंडीशन चेक किया कि मार्क्स क्या है, 90 है या 90 से ज़्यादा है, तो ग्रेड ए प्रिंट किया जाएगा। अगर नहीं है, अगर ये हो जाता है तो एंड इफ हो जाएगा, बट अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है देन हम एल्स पार्ट में जाते हैं। एल्स पार्ट में आपके वहाँ पे क्या, इज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, यू हैव टू चेक। अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर आप एंड पे चले जाएंगे, आप टोटल ग्रेड प्रिंट करेंगे। अगर नहीं देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू द नेक्स्ट एल्स इफ, एंड हियर अगेन मार्क्स विल बी कंपेयर्ड विद 70। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका ग्रेड इक्वल्स टू सी प्रिंट हो जाएगा और आप इस इफ से बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू द एल्स पार्ट एंड दैट इज ग्रेड इक्वल्स टू डी, और यहाँ पे इफ का जो स्टेटमेंट है वो एंड कर दिया जाएगा एंड देन योर रिजल्ट विल बी प्रिंटेड। मतलब आपने एक बार इफ लिखा, एक कंडीशन, वहाँ पे आपने मार्क्स को चेक किया, एंड इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 देन लूप वहीं, वो आपका इफ स्टेटमेंट वहीं टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, प्रिंट ग्रेड्स इक्वल्स टू ग्रेड्स, जो भी आपके ग्रेड्स हैं, यानी ग्रेड ए आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है सेटिस्फाइड करता तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा कि मार्क्स को 80 से तो ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रेड में वैल्यू देके आपका एफ से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांचिंग। यहाँ पे आप क्या करते हैं, हर बार एक नया कंडीशन देके चेक कर सकते हैं। ओके, एंड हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ गो टू स्टेटमेंट। जस्ट टू लेट मी सी, यहाँ पे क्या है कि आपको आपके प्रोग्राम में एक लेबल डिफाइन करना होगा। मीन्स गो टू के लिए एक लेबल डिफाइन करते हैं कि जब आप गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे तो व्हाट यू विल गिव द इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस पर्टिकुलर लेवल पे चले जाएं, जो भी लेवल हमने लिखा है, वट एवर द लेवलिंग वी हैव डन। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे देखें, CLS इनपुट नंबर आपने लिया, लेट i इक्वल्स टू 1 बेगिन। ये क्या है, बेगिन इज द लेबल, हमने एक लेबलिंग कर दी। ये लेबलिंग आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, जस्ट ये एक लाइन है, इसको रीड करेगा प्रोग्राम और आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा तभी आगे जाएगा। देन प्रोडक्ट इक्वल्स टू नम इंटू 1, देन प्रिंट नम इंटू आई, एंड देन प्रोडक्ट इक्वल्स टू, देन प्रोडक्ट आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करते हैं। देन प्रिंट, देन गो टू
begin। मतलब आपने क्या किया, आपने एक नंबर यूजर से लिया, जो भी नंबर यूजर एंटर करे, फिर आपने क्या किया, i इक्वल्स टू 1 एज्यूम कर लिया, असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद आपने क्या किया, प्रोडक्ट जो वेरिएबल है वहाँ पे आपने नंबर इंटू आई डिफाइन कर दिया। मतलब आप जितनी बार यहाँ पे आएंगे इस प्रोडक्ट में नंबर में आई से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया जाएगा। देन आपने प्रिंट किया क्या, एक स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट किया कि आप जो भी नंबर दे रहे हैं, नंबर इंटू 1 2 3 एक टेबल के फॉर्म में प्रिंट होके वो स्ट्रिंग प्रिंट होके आ रही है। देन जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या प्रोडक्ट में स्टोर्ड है ऑलरेडी एंड दैट इज बीइंग प्रिंटेड हियर। एंड आफ्टर दिस प्रिंटिंग आई की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एंड देन इट इज नॉट ओनली टेबल, ये कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करता ही चला जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, एंड पे चले जाते हैं। तो अब क्या है, आपने सपोज नंबर एंटर किया 5, तो सबसे पहले क्या होगा, 5 इंटर नम में स्टोर कर दिया जाएगा। एंड देन आई इक्वल्स टू 1, देन क्या होगा, प्रोडक्ट में स्टोर होगा 5 इंटू 1, प्रोडक्ट में 5 स्टोर हो गया। एंड देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। देन आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये 2 से फिर प्रोग्राम कहाँ जाएगा, गो टू बिगिन, वहाँ पे ऊपर। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 5 इंटू 2, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। देन इट विल प्रिंट 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, देन अगेन आई इक्वल्स टू 3, अगेन ऊपर। सो दिस इज द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था। अब आपका जो ये है, आपने इन्फिनाइट लूप डिफाइन कर दिया। आप इससे बाहर कैसे आएंगे, तो वी हैव एन शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ब्रेक। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा। तो टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन जस्ट यूज द कंट्रोल प्लस ब्रेक की, एंड आफ्टर दिस key combination that execution of that program will be stopped, and this is the end of this chapter. So please complete the assessment activity and revise this chapter, because in next chapter we are going to write some programs, and to write the programs it is important to get the concept of all the topics which we discussed in this chapter.